ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਅਵਰ ਚੈਨਲ ਈਜ਼ੀ ਕਲਾਸਿਸ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ? ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ 10th ਕਲਾਸ ਦਾ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ 2024-25 ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਜੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੇਪਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਕੁਐਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੇ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਜੀ ਐਂਡ ਤੱਕ ਅਤੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਫੁੱਲੀ ਸ਼ੇਅਰ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੰਬਰ ਆ ਸਕਣ। ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਇਹ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 2024-25 ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜਮਾ ਵੀ ਸਕਿਪ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ A to Z ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੋਲਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਹੱਲ ਦੇਖਣ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਵਾਚ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਅਗਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸੋ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਜੇ नहीं ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣੀ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ सभी प्रश्न अनिवार्य है। ਹੁਣ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ हैं। भाग का है हमारे पास निम्नलिखित बहुविकल्पिक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जिसका कि ਹੁਣ फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पावन शब्द का सही संधि विच्छेद। ਪਾਵਨ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੋੜੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਪਾ ਪਲੱਸ ਵਨ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ, ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਿਕ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਲਖਪਤੀ ਸਮਸਤ ਪਦ का सही समास विग्रह चुने। ਲਖਪਤੀ ਦਾ ਆ ਜਾਣਾ ਜੀ ਲਾਖੋਂ ਕਾ ਪਤੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਬਾਕੀ ਵੈਸੇ ਲਾਖੋਂ ਦਾ ਪਤੀ ਹੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ। ਥਰਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਚੁਣकर ਲਿਖੇ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭਾਵਵਾਚਕ ਕੌਮਾਰਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੌਮਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸ਼ਤਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਰਾਇਵਾਚੀ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣकर ਲਿਖੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਅਰੀ। ਤਨਯ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਮਹੀਪ ਅਤੇ ਨਗ ਇਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵਰਡ। फिर अपने को निम्नलिखित बहुविकल्पिक प्रश्नों के सही विकल्प में उत्तर दीजिए, ठीक है। मैं हले भी कहा अंदर लिया आया जिन्होंने साढ़े चैनल सबसक्राइब नहीं किया ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ 60% ਪੇਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜੇ 80 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆ 40 ਜਾਂ ਫਿਰ 50 ਨੰਬਰ ਪੱਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ जड़ की मुस्कान मतलब बुक वाले क्वेश्चन आ गए हो ना। जड़ की मुस्कान कविता के अनुसार फूलों ने पंक्तियों की चंचलता का आधार किसे बताया है? डालियों को, ठीक है। फिर गाता खग कविता के अनुसार फूल हमें क्या संदेश देते हैं? रोने का, मुरझाने का, सोने का या फिर सदा मुस्कुराने का। सो सदा मुस्कुराने का अपने को राइट आंसर आ जाना अपने को। थर्ड क्वेश्चन कहता है कि माँ का कमरा पाठ के अनुसार बसंती की पड़ोसन कौन है? ममता या सुमित्रा या सरस्वती या फिर रेशमा। सो राइट आंसर अपने को रेशमा आ जाना जी इस क्वेश्चन के लिए। नर्स कहानी पाठ के आधार पर बताए महेश की बहन का नाम क्या है? सो महेश की जी बहन आ जी ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਆ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੁੰਨੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੈਸੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਾਊਟ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਲੱਗਦਾ ਮੁੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੋਨਾ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਆ। ਮੋਨਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਨਾ ਟਿਕ ਲਗਾ ਲੈਣਾ। ਬਾਕੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੱਗਿਆ ਗਿਆ ਜੀ पद्यांश को पढ़कर उत्तर दें। देखते हैं पद्यांश किया हसमुख प्रसून सिखलाते। प्रसून ਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਸ਼ਬਦ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਫਲਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੁਸ਼ਪ यानी कि फूल अपने को इसका होंगे है, ठीक है। पल भर है जो हंस पाओ अपने उर की सौरभ से जग का आंगन भर जाओ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਗਾਤਾ ਖਗ। ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪੁੱਛਿਆ। हसमुख प्रसून क्या संदेश देते हैं? देखो हसमुख प्रसून सिखलाते पल भर जो हंस पाओ यानी कि पल भर जो हंस पाओ। तो ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੱਸਣੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਲਗਾ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਲ ਭਰ ਹੱਸਣਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਛ ਸੈਕਿੰਡਸ ਲਈ ਹੱਸਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਸਕਰਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮਾਈਲ ਦੇਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਸਕਰਾਣਾ ਹੀ ਟਿਕ ਲਗਾਉਂਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਫੂਲਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਮੁਸਕਰਾਣੇ ਦਾ। ਹਾ ਦੰਦੀਆਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੁਸਕਰਾ ਦੇਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਈਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਜੀ ਸਮਾਈਲ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ।
ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਪ੍ਰਸੂਨ ਕਿਸੇ कहते हैं। तो देखो हिंदी ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਸੂਨ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਫੂਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਲਾਵਰ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਕਾਂਟੋ ਕੋ, पेड़ों को, फूलों के, हवा को। तो फूलों के इसका राइट आंसर अपने को हो जाना है ना। सौरभ शब्द का क्या अर्थ है? देखो जी, जे तो सौरभ उन्होंने पूछा, पर एक बार लाइन पढ़ दे शायद क्लियर हो जाए। अपने उर की सौरभ से जग का आंगन भर जाओ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹਿਰਦੇ, ਸੁਗੰਧ, ਫੂਲ ਜਾਂ ਹਵਾ। ਹਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਫੂਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਹਿਰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸੌਗੰਧ ਹੋਣਾ ਜੀ। सौ से सौरभ, 100 से सौगंध याद रखना भी सौखा है अपने को। फिर अपने को लग जाएगा इस पद्यांश में कौन सा अलंकार आया है ना जी। तो ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਣਾ ਅਨੁਪ੍ਰਸਾਰ ਅਲੰਕਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੁਹਾਵਰੇ ਜਾਂ ਲਕੋਪਤੀ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਮੋਤੀ ਪਿਰੋਣੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮੋਤੀ ਢੂੰਡਣਾ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਏ। ਆਦਰ ਸੇ ਬਾਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਲਲਚਾਤਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਸੁਣੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਕਿਤਨੇ ਮੋਤੀ ਪਿਰੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ, ਹੈ ਨਾ। ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਏ, ਲੋਕੋਕਤੀ ਦਾ ਕਿਆ ਅਰਥ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਰਥ ਆ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਉਹ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ख ऑप्शन, यानी कि जब कोई इंसान बातें तो बहुत करता है परंतु काम कुछ नहीं करता है, उस ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਵਤ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, यानी कि ਲੋਕੋਕਤੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। तो ਅਸੀਂ देखते हैं अपना अगला आंसर क्वेश्चन, मतलब हमारी बिल्ली हमेशा में लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है। ਇਹਦਾ आंसर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਦਊਂਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕ ਖ ਗ ਜਾਂ ਘ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਉਹ ਕ ਖ ਘ ਜਾਂ ਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੱਸਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਨਿਮਨਲਿਖਿਤ ਗद्यांश को पढ़कर, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਣੇ ਆ ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆ ਦੇਖੋ ਆਨਸਰ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੈਰਾ ਹੈ ਨਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੀਡ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਫਸਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, फर्स्ट क्वेश्चन अपने ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ आँखें खुलने पर डॉक्टर खन्ना ने क्या देखा। सो देखो उन्होंने देखा कि टप टप करते खून की बूंदें टपक रही थी। सेकंड लाइन भी है, फिर उन्हें हल्की टीस भी उठ रही थी। उन्हें जैसे ही सिर ऊपर बैठा दिया तो ड्राइवर को भी जख्मी पाया। तो ये तुसी इन्ना पहले दे विच लिख दिओ। ठीक है। पहले क्वेश्चन दे विच ये ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ मैं दस्सिया ਸੀਗਾ फस्ट ਦਾ। ਅੱਗੇ देखते हैं अगला हैगा सभी किसके लिए उतावले थे। तो ਉਹਦਾ आंसर अपने को इत्थों आना है, सभी सवारियां भी अपनी जान बचाकर भागने के लिए बचाकर भागने में लगी थी। सभी को अपनी जान के लाले पड़े हुए थे। हड़बड़ाहट में हर कोई अपना सामान लेकर खिसकने के लिए उतावला था। जे तुसी सारी लाइन नहीं लिखनी, सिर्फ इत्थों लिखो कि हड़बड़ाहट में हर कोई अपना सामान लेकर खिसकने के लिए उतावला था। ये तो हमारा सेकंड क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। थर्ड है कि डॉक्टर खन्ना को किस से नीचे लाने में किसने मदद की। बस से नीचे लाने में किसने मदद की। तो ऐसे में दो युवक मिस्टर खन्ना की आगे बढ़े, उन्होंने सामान उठाया और धीरे धीरे उठाकर बस से नीचे उतार दिया। सो ये सीगा जी स्टूडेंट्स अपने को तीजे का पहले का आंसर, मतलब तीजे क्वेश्चन का आंसर। फिर देखो टीस शब्द का क्या अर्थ है। यदा मैं तुहानूं पहले सॉल्व करने वास्ते लिखता कष्ट ते पीड़ा। ठीक है। तो देखो जिहड़ा टीस शब्द का मतलब हुंदा वो हुंदा दुख, दर्द या कष्ट, पीड़ा यानी कि तकलीफ, यानी कि पेन होना। ठीक है। तो उपरोक्त गद्यांश का उपरोक्त जिहड़ा शीर्षक है वो होना इंसानियत, क्योंकि तुसीं देखो ना ये सारी इंसानियत की गल्लां आ कि सारे जने इत्थों दी भज्जी जांदे सीगे। तो वो जिहड़े अंकल सीगे मिस्टर खन्ना, उन्होंने दो लोगों ने वो की हैल्प की, उन्होंने इंसानियत का फर्ज निभाया। तो तुसीं लिख सकते हैं इत्थे इंसानियत का फर्ज लिख सकते हैं। ये तुहाडा एक बड़ा वधिया ते एक्यूरेट ये वास्ते गद्यांश हो जाता है। ठीक है। नीति शब्द की विशेषता दसनी है स्टूडेंट्स। तो नीति शब्द की जी विशेषता होगी वो होगी नैतिक। ठीक है। नैतिक। फिर अपने को विधि शब्द का विलोम, यानी कि वह उल्ट शब्द जिन्होंने असीं कहते हैं वो विलोम की होंदा है। वो देखो जी विधि का होंदा है निदेश। निदेश जेकर तुहानूं वो स्पैलिंग समझ नहीं आती तो देख लो निषेध डन। ओके। फिर अपने को समरूपी भिन्नार्थक शब्द है नम्र
ਤੇ नर्म ਅਤੇ नम्र में नर्म का अर्थ विनीत और नम्र का अर्थ कोमल होता है। सही या गलत दसना। सो ये तो तुहानू साफ ही पता लगता पाया कि ये गलत है। फिर यह कि निम्नलिखित विकल्पों में से कनक शब्द का अनेक आर्थिक शब्द चुनकर लिखें। कनक अपने कोल हुंदा की है जी सोना गेहूं जवान, धतूरा पलाश खजूर, पलाश गेहूं करण। तो यदा राइट आंसर अपने को फर्स्ट ही ऑप्शन आनी है जी सोना गेहूं जवाब, सोना गेहूं जवाब। फिर अपने को ड आ गया जी कि आँखों के सामने होने वाला उन्होंने से की कहते हैं जी ओदा जड़ा एक शब्द वरतना है अनेक शब्दों के लिए वो होता है प्रत्यक्ष। ठीक है, प्रत्यक्ष। फिर अपने को लिया वह अध्यापिका विद्वान है वाक्य को शुद्ध करे। तो देखो जो विद्वान शब्द है ना असी एक मेल वास्ते वरती है, यानी कि जे इतने अध्यापक लिखा होंगे फिर असी रहन देना ही। हुण इत्थे विद्वान का जोड़ा वो होंगे ना स्त्रीलिंग वो होंगे विदुषी। सो इस करके इत्थे असी विदुषी शब्द वरत्या जो कि एक फीमेल वास्ते वरत्या जाता है। विद्वान होंगे अपने कोल जोड़ा कि मेल तो विदुषी होंगी अपने कोल फीमेल। ठीक है। फिर असी उत्तर देने सूखी डाली कांगी में दादाजी पोती इंदू ने मिडल तक शिक्षा प्राप्त की हुई है जी। सही है गलत? तो गलत है क्योंकि उन्होंने प्राइमरी तक जी है शिक्षा प्राप्त की सी। मित्रता निबंध के अनुसार अविश्वास पात्र मित्र जड़ा है उसे भारी रक्षा रहती है। सो देखो जी जड़ा किस प्रकार के मित्र से भारी रक्षा होती है तो होंगे अविश्वास मित्र। सो ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है अपने को। सदाचार का तावीज़ निबंध में साधु तावीज़ का प्रयोग सबसे पहले किस पर करता है तो ही लिख देना एक कुत्ते पर। ठीक है, कुत्ते पर। देश के दुश्मन एकांगी में नीलम की बेटी मीना है हाँ या नहीं तो नहीं। जेडी ये नीलम दी बेटी मीना नहीं है। ठीक है। फिर देखो निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं चार का उत्तर दें, यानी कि अपने को कोई 4 आप आंसर देने ने। सो आह देख लो 1 2 3 4 5 6 आ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ 4 हल करके ले आना है। सो अपने को असी इथों पहला क्वेश्चन किया लेखक ने बैजनाथ पहुंचकर हिमालय से किस रूप में भेंट की। सो वो देखो वह आंसर लिखा लेखक ने बैजनाथ। देखो जी ये मैं थोड़े लिए आप आंसर लिखा। सो प्लीज़ इस कारण चैनल को सबसक्राइब जरूर कर देना। लेखक ने बैजनाथ पहुँच कर देखा कि वहाँ गोमती की उज्ज्वल जल राशि में हिमालय की बर्फीली चोटियों से छाया तैर रही थी। लेखक ने इस जल में तैरते हुए हिमालय से जी भर कर भेंट की। ठीक है। सो सेकंड क्वेश्चन असी केड़ा कीता है जी। देखो देश के दुश्मन एकांगी में नीलम जयदेव से मान भरी मुद्रा में क्या कहती है। तो देखो नीलम जयदेव से जी मान भरी मुद्रा है जी उसमें मुद्रा में कहती है अब इतने ध्यान ना समझ लियो अब कौमिया के लिखियो बताइए इतने दिन कहाँ लगाए यहाँ तो राह देखते देखते आंखें पथरा गईं वहाँ जनाब को परवाह तक नहीं कि किसी के दिल पर पत्थर बीत रही है। ठीक है। फिर अपने को अगला क्वेश्चन असी किया जी केड़ा किया कि माँ का कमरा आधार पर बताएं कि उसकी आंखों में आंसू क्यों आ गए थे। बसंती ने जैसा नकारात्मक व्यवहार सोचा था उसके पुत्र का व्यवहार उससे बिल्कुल विपरीत था। उसने ऐसा सुख भरा जीवन कभी नहीं जिया था। अब वह अपने पुत्र के साथ सुखपूर्वक रह सकेगी। इस प्रकार पुत्र का स्नेहपूर्ण व्यवहार पाकर बसंती की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन होया कंप्लीट। फिर अपने को सीगा जी एक क्वेश्चन कि अशिक्षित हृदय कहानी में नीम के वृक्ष के साथ मनोहर सिंह का इतना लगाव क्यों था। सो नीम का वृक्ष उसके पिता के हाथ का लगाया हुआ था। इसके साथ उसका बचपन बीता व पेड़ उसके मित्र के समान प्रिय था और उसके पिता के हाथ की निशानी थी, इसलिए उस पेड़ से उसे बहुत लगाव था। सो ये अपने को होंगे जी 4 क्वेश्चन करने से असी चारे दे चारे कर लिए कंप्लीट।
सो आफ्टर दीज क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन 3 प्रश्न करने या 6 या फिर 7 पंक्तियां ਦੇ ਵਿੱਚ आपने इसका आंसर देना है ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆ ਵੱਡੇ क्वेश्चन ने स्टूडेंट्स ये तुसी अपनी कॉपीज़ तो कर लेने। जिस समय गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था उस समय भारतीय समाज की क्या स्थिति थी। सदाचार के तावीज पाठ में छिपे व्यंग्य को स्पष्ट करें। फिर अगर सूखी डाली एकांगी में आगे लिखा जी मंझली बहू के चरित्र की कौन सी विशेषता सबसे अधिक दृष्टि गोचर होती है। फिर यह ममता कहानी के आधार पर बताएं ममता का चरित्र चित्रण। देखो स्टूडेंट जो ममता कहानियां ने तुसीं छड़नी ना ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਨਾ ਮਮਤਾ ਦਾ ਇਹ ਹਰ ਵਾਰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋਏਗੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਮਤਾ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। लास्ट है 2 कलाकार कहानी का उद्देश्य ये भी इंपॉर्टेंट है। दोनों क्वेश्चन जो एंड ले आने मैं कहूँगा कि तुहाडे लिए नंबर ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ देखो किन्ने ਦਾ है ये 4 नंबर ਦਾ है तो ਤੁਹਾਡੇ ये दोनों क्वेश्चन पक्के हर बार आने हैं तो ਤੁਹਾਡੇ 8 नंबर हर बार पक्के हो ही जाने हैं। ठीक है भाग ग आ अपने कोल ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੀਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਿਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਮਾਨ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਿਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜੀ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 7ਵਾਂ ਵਾਲਾ ਕਰਨਾ ਆ ਜਿਹੜੇ 8ਵਾਂ ਦਿੱਤਾ 9ਵਾਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਸਲ ਸਮਝੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਇਹ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਆ ਜਿਹੜਾ कि ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ हिंद को संघ की राजभाषा कहने का यह अर्थ नहीं कि भारत में अन्य भाषाएं इससे कम महत्वपूर्ण है। भारत की सभी प्रादेशिक भाषाएं समान महत्व रखती हैं। यदि अखिल भारतीय स्तर पर हिंदी राजभाषा है तो अन्य प्रादेशिक भाषाएं अपने अपने राज्य भाषा के रूप में काम कर रही हैं। सो इन्ना जिहा सीगा ते इन्ने ਜਿਹੇ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ 4 ਮਾਰਕਸ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ 4 ਮਾਰਕਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਟ ਗੱਲ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਵਰਡ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਪੈਲਿੰਗ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਵਰਤਣਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਿਕ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਿਕ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ भाग ख देखते हैं जी ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 चीज़ें ਦਿੱਤੀਆਂ ਆ। ਅਸੀਂ अपरंजय वाला है पहले पढ़ लेंगे। आपका नाम परंजय कुमार है। आप संकल्प पब्लिक स्कूल पटियाला के डायरेक्टर हैं। आपके स्कूल में दिनांक कितनी को विज्ञान का जोड़ा प्रदर्शन लग रही है। आप अपनी ओर से एक सूचना तैयार कीजिए। सो ऐसे लिखा जी विज्ञान प्रदर्शनी। ठीक है आप सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि आपके विद्यालय में इतनी तारीख जड़ी भी तो थी उत्थे डेट मैंशन की होगी क्वेश्चन पेपर में उत्थे लिख लेनी है को एक विज्ञान प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है। जो भी विद्यार्थी इस प्रदर्शन में भाग लेना चाहता है वो अपना नाम कक्षा अध्यापक को 20 अगस्त से पहले दे। विद्यालय के सभी विद्यार्थी का आग्रह है कि प्रदर्शनी में भाग लें। परंजय कुमार डायरैक्टर संकल्प पब्लिक स्कूल पटियाला। सो देखो जिद्दां तुहाडी इन्नी जी सूचना ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੂਚਨਾ ਆ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਵਧੀਆ ਜੇ ਇਹਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਇਹ। ਫਿਰ ਭਾਗ ਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਆ ਇਹ ਲੈਟਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗਾ। ठीक है उस तो बाद पहले अगे बढ़ो उस तो बाद अपने को इतों ਦੀ एक ना अनुच्छेद लिखना है तो वो अनुच्छेद भी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ करवा दूंगा। ਇਹ ਆ ਜੀ ਉਹ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਚਾर्य ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਧੁਰੀ ਵਿਸ਼ੇ ਖੇਲ ਸਮਾਨਾਰਥ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪੱਤਰ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਹੋਦय ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੰਨਾ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
सो अपने को विद्यार्थी हो गए जो अनुच्छेद सीगा ना प्रकृति का वरदान पेड़ पौधे। सो इन्वायरमेंट बारे आ। सो ये तो तुहानू दसन की लोड़ ही नहीं, तुहानू पता ही आ कि साढ़े पेड़ पौधे किन्ने महत्वपूर्ण आ, ऑक्सीजन दिंदे आ, खाण पीण ली चीज़ां दिंदे आ, है ना, लकड़ इन्हां तो प्राप्त हुंदी आ, है ना, ते फर्नीचर इन्हां तो बनदे आ, होर ये वातावरण नूं शुद्ध रखदे आ ते सानू जिहड़ी आ बरसात इन्हां दे करके हुंदी आ। ओजोन की जिहड़ी परत आ वो इन्हां दे करके ही बची हुई आ। ते ये सारियां गल्लां जिहड़ियां तुसीं इहदे विच लिख सकदे हो। पेड़ पौधों बारे तुसीं जिन्ना मर्जी पैरा बना लो, बन जाना बहुत वड्डा। ते ये तुसीं आप भी कर सकदे हो, ठीक है। सो जी अपने को इस तो बाद एक लास्ट टॉपिक जोड़ा आ 8वां आ वो हैगा नियम लिखित ही बैंक का जोड़ा खाता हुंदा ना, फार्म भरना हुंदा वो भरना है, जो कि काफ़ी ईजी आ। आप देखते हैं फर्स्ट की कहता कि मान लेते हैं कि आपका नाम ये है, आपका कल्याण बैंक शाखा में ये नंबर है, आपको अपने नंबर में इतने रुपए जमा करवाने हैं, इस अनुसार ये भरें। कल्याण बैंक शाखा मुंबई, बैंक में जमा रुपए करवाने के लिए प्रपत्र जमा बचत खाता नंबर। हुण जिहड़ा इत्थे नंबर लिखिया तुसीं इहनूं बहुत ही ध्यान नाल भरना, जिद्दां 2834663436 जो कि डैश के नाम से है। इत्थे तुसीं हुण नाम लिख देना जो इत्थे लिखिया है। सो मेरे कोल तो इत्थे जगह थोड़ी आ, पर जो तुसीं पेपर दे विच अपना कोई आंसर शीट ते बनाओगे ना, तुसीं थोड़ी वड्डी जगह रखियो, क्योंकि देखो जिहदा सुलक्षणा पंडित है ना, तो ਉਹਦੇ ਲਈ थोड़ी जगह ਆਪਾਂ ਨੂੰ ज़्यादा चाहिए है, तो तुसीं उस हिसाब ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ एडजस्ट कर लेना, ठीक है। सो मैं इत्थे तो ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ इदा करदा आ कि इत्थे थोड़ा छोटा कर लेंदा आ। सुलक्षण पंडित, ठीक है, मैंने थोड़ा छोटा कर लिया। कि नाम से है में रुपए डैश अंकों में, यानी कि ऊपर असीं लिखने अंकों में, तो अंकों में कितने 29000 है ना, अंकों में। शब्दों में हुण देखो जे तुहानू की कहते हैं 29 कहते ना, 29,000 लिखने पैने। हज़ार जो तुहानू आउंदे 29 दे देखो 29, ठीक है। फिर तुसीं नाल इहदे की लिख देना हज़ार, ठीक है। इन्हें भी मैं छोटा कर देना। एक मिनट मैं इन्हूं पहले वो कर लवां। असीं इहदा थोड़ा साइज छोटा कर देंगे ताकि ये अपना जोड़ा है फिट बैठ जाए कित्थे डैश दे विच, ठीक है। सो ये अपनी डैश दे विच फिट बैठ गई। फिर एंड दे विच असीं की करना जमाकर्ता के हस्ताक्षर। हुण बच्चे पता की करदे इत्थे अपने साइन छड्ड दिंदे आ, जबकि उन्होंने जिहड़ा व्यक्ति का नाम दिता उहदे साइन छड्डने हुंदे आ। सो असीं की करना उस व्यक्ति का नाम लिखना जिहदे नां ते खाता है सुलक्षणा सिंह, सॉरी पंडित, मेरे मूँह तो बार बार सिंह निकली जाता, सुलक्षणा पंडित उहदा पूरा जिहड़ा नाम तुसीं भर देना है। सो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ नंबर पक्के होने ਉਹ भी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਹ ਹੋਣੇ ਆ 5 ਨੰਬਰ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਥਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਭਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਜੇ। तो ये नाल ही पेपर होया तुहाडा कंप्लीट। तो देखो जी असी कोई भी चीज़ छड्डी नहीं, तुहानू सारी चीज़ ही A to Z सारा सल्यूशन करवाया। सो मैनू उम्मीद है तुसीं साडे चैनल ईजी क्लासेस नूं सबसक्राइब जरूर करोगे, तो साडे चैनल नूं भी लाइक करोगे, साडी वीडियो नूं भी लाइक करोगे जी।